Good morning, students. I welcome all of you in a lecture on GB Shaw. Okay, so GB Shaw, I mean George Bernard Shaw. So people in short call him GB Shaw, or some people call him Bernard Shaw. Okay, so GB Shaw's one play is prescribed in our syllabus. Okay, so here we need to know some background of George Bernard Shaw. So the title of the play is Arms and the Men. Arms and the Men, that was published in 1894. Okay, so G.B. Shaw was an Irish playwright. He was also a critic, polemicist. Polemicist, I mean a person who engages in controversial debates. मतलब कि कोई आदमी जो कंट्रोवर्शियल जो इश्यूज़ होते हैं उन पे बात करने की क्षमता रखता हो, या फिर उन पे अपने विचार रखता हो, या फिर कुछ ऐसी मतलब जो जिन पे यूजुअली लोग बात नहीं करना चाहते हैं, वो उन सब्जेक्ट्स पे बात करने की कोशिश करता है. तो ही वाज ए पोलेमिसिस्ट एंड ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ऑल्सो. एंड he was born on 26 July 1856 and died on 2nd of November 1950. Okay, so he lived almost for 94 years, I think. I might be wrong in calculation. Okay, so in 1925 he was awarded the Nobel Prize in Literature, and he is considered, and he is one among the leading dramatists of this, I mean, of present time. I mean, not present time, but when he was alive, he was one of the leading dramatists of his generation. And nowadays, in present time, his plays are performed all over the world and has been translated in many languages all over the world. Okay. So he was born in Dublin. Okay, so the Dublin is capital city of Ireland, and later in 1876 he was moved to London, the capital city of Britain. I mean, capital city of England, where he struggled to establish him as a writer and as a novelist. And by the mid 1880s, he had become a respected theatre and music critic. Okay, he tried his hand on novels. I mean, उसने नोवेल लिखना शुरू किया, कुछ novels उसने लिखे भी, but he couldn't get that much fame and couldn't get that much economical or financial success. So he dropped the idea and failed as a novelist. In 1895, he became a theatre critic of the Saturday Review. So Saturday Review is a London magazine. Okay, no, it was not a magazine, actually it was a newspaper, a London based newspaper that was run in British in British, that was published between 1850 to 1938. And later on Shaw started writing his own plays, and he had published and performed many plays. But in 1894 he published, or he wrote a successful play that is called Arms and the Men, that is prescribed in our syllabus. Okay, so G.B. Shaw was influenced by Henrik Ibsen. Okay, G.B. Shaw was influenced by Henrik Ibsen. So Henrik Ibsen was a Norwegian playwright and a theatre director, and he was one of the founder of the modernism in theatre. Okay, so G.B. Shaw was influenced by Henrik Ibsen. Okay, so influenced by Henrik Ibsen, he sought to introduce a new realism into English language drama, using his plays as a vehicle of disseminate his political, social and religious ideas. तो अपने जो novels थे, नहीं, अपने जो dramas थे, उसमें G.B. Shaw ने अपने जो ideas थे
उसके जो पॉलिटिकल आइडियाज़ थे, सोशल समाज से संबंधित जो उसके विचार थे और रिलीजन से संबंधित जो विचार थे, उनको उसने अपने ड्रामा में प्रस्तुत करने की कोशिश करी और ड्रामा के थ्रू लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी. ओके, सो here we get some new term, that is realism. हेनरी गिब्सन जो है वो हेनरी गिब्सन की तरह ही उसने क्या किया है, रियलिज्म को प्रस्तुत करने की कोशिश करी है. तो व्हाट इज रियलिज्म? हियर वी विल डिस्कस रियलिज्म. सो रियलिज्म जो है दैट इज इन आर्ट. ओके, आर्ट के क्षेत्र में everything they present is accurate, detailed and unembellished. okay, इसका मतलब ये है कि किसी तरह का कोई छेड़खानी नहीं करी गई है. कॉन्टेम्प्रेरी लाइफ जैसी है वैसी प्रस्तुत करी गई है, प्रकृति जैसी है वैसी प्रस्तुत करी गई है. उसको एग्जाजरेट करने की कोशिश उन्होंने नहीं करी है, ना अंडरस्टेट किया है और ना ही ओवरस्टेट किया है. मतलब कि ना तो उन्होंने उसको कम आंका है, ना ज़्यादा प्रस्तुत करने की कोशिश करी है. जो चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों को क्या किया है, प्रस्तुत किया है. कि जिस तरह की सोसाइटी है, जिस तरह की प्रकृति है, उसको उसी रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं. पहले जो थे वो क्या किया जाता था कि लाइफ को और जो प्रकृति थी उनको मोरलिस्टिक और रोमांटिसाइज किया गया पहले का जो लिटरेचर है उसमें. ठीक है, और उनके बारे में इमेजिनेटिव चीज़ें प्रस्तुत करी गई जो हकीकत नहीं थी. ठीक है, तो जो रियलिज्म जो है ये एक मूवमेंट था जिसने क्या किया, दैट रिजेक्ट इमेजिनेटिव आइडियलाइजेशन. ओके, मतलब जो किसी चीज़ को इमेज मतलब कि प्रकृति मतलब जो चीज़ें हैं उनको क्या किया गया है, इमेजिन किया गया है. उसमें कल्पनावाद जो है उसको प्रस्तुत किया गया है. ठीक है, तो हिंदी में हम देखने की कोशिश करें तो इसका रियलिज्म का ट्रांसलेशन हम देखेंगे तो क्या कहेंगे, यथार्थवादी चित्रण या फिर यथार्थवादी कला या फिर यथार्थवादी शैली. मतलब कि जो हकीकत है वो ही सटीक तरीके से विस्तृत और बिना किसी छेड़छाड़ के चित्रण किया गया है उस चीज़ का. ओके, तो ये जो यथार्थवाद है वो बाहरी दिखावे को नहीं मतलब का समर्थन नहीं करता है, और कल्पनाशीलता या जो आदर्शवाद है उसका क्या करता है, खारिज करता है, उसको उसका खंडन करता है. तो ये रियलिज्म है. तो हेनरी गिब्सन के और GB शो के जो नोवेल्स हैं या जो ड्रामाज हैं उसमें हम देखने हैं कि यथार्थवाद हमें ज़्यादा देखने को मिलता है. ठीक है, तो हम ये जो नोवेल पढ़ें, ये जो हम ड्रामा पढ़ेंगे आर्म्स एंड द मैन, उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन्होंने जो क्या बात करेंगे, जो चीज़ें रोमांटिसाइज करी गई हैं, जो इमेजिनेटिव चीज़ें हैं, उनको किस तरह से उसने क्या करा है, खारिज करा है. ज़िंदगी को एक ये कुछ आइडियाज़ या फिर जो कुछ विचार जो मैं रियलिज्म के बारे में बता सकता था मैंने आपको बताए हैं. ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय इब्सन एंड इब्सनिज्म. सो ही पब्लिश्ड ए पेपर दैट इज on Ibsen, that was published on 1891, and the title of the paper was Quintessence of Ibsenism, that was published in 1891. So so now he will talk about his major works that he has written in his lifetime. So earlier he tried on novels, then being unsuccessful on novels, he turned towards drama. Okay, so in his lifetime he has written more than 60 plays, and here is a list in which we can conclude his major works such as Arms and the Man, that was published in 1894, and then there was second that was published in 1897, that is Candida. Okay, and then in 1902 Man and Superman. Then there is Pygmalion, that was published in 1912. St. John, that was published in
1923. Then there were 3 plays for Puritans. Okay, no, oh, sorry, it was actually a collection. And then there is Caesar and Cleopatra, Major, Barbara, and then the Doctor's Dilemma. And one of his drama was actually banned. Okay, so that was Mrs. Warren's Profession. That was written in 1893, but couldn't get published and couldn't get performed until 902 1902 तक उसको परफॉर्म नहीं किया गया. और because the Lord Chamberlain, the censor of the प्लेस के बारे में सेंसर होता था पहले कि कौन सा प्ले प्रस्तुत करने लायक है या फिर कौन सा प्ले प्रस्तुत करने लायक नहीं है. उसके लिए एक सेंसर बोर्ड होता था. और सेंसर बोर्ड ने क्या किया, रिफ्यूज्ड इट ए लाइसेंस ऑफ परफॉर्मेंस. उसको परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्म किए जाने का लाइसेंस था वो उन्होंने नहीं दिया. और उसकी वजह से ये कई सालों तक बैन किया गया था. ओके, ये जो मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन है ये एक औरत जो कि प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी, उसके जो प्रोफेशन है उसको लीगलाइज करने से संबंधित था. तो ब्रिटेन में उस समय जो प्रोस्टिट्यूशन था उसको लीगल नहीं किया गया था, या फिर ये एक लीगल इशू, प्रोस्टिट्यूशन जो था वो एक लीगल इशू नहीं था. ठीक है, तो अब हम आने वाले लेक्चर में बात करेंगे कि आर्म्स एंड मेन के बारे में थोड़ा देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, या फिर कब ये लिखा गया, किस तरह से क्या 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 चीज़ें इसके अंदर लिखने की कोशिश कर रहा है. उसके बाद में हम डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे, इसको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए हम इसमें इसकी समरी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, या फिर आने वाले लेक्चर में मैं इसकी समरी आपको बताऊंगा. एंड देन वी विल डिस्कस द अदर इश्यूज लाइक what is the theme and what are the other things in play. So आज के लिए मेरे अंदाज से ये काफ़ी रहेगा. Goodbye and thank you.